Hello friends, I am Pooja Sangan. Today I will discuss the collinear vector, coplanar vector and the co-initial vector. These are the type of the vectors. Now the first of all we define what is the collinear vector. Collinear vector are those vectors in which the angle between the two vectors is 0 degree or 180 degree is known as the collinear vector, and the magnitude can be same and magnitude can be different. It means we can say that we have two vectors. We have two vector. One vector, first vector is A vector and second vector is B vector. It means we can say that the angle between the two vector is 0 degree. It means here this is A vector and B. This is B vector. It means we can say that the angle between them is equal to 0 degree. 0 degree. So we can say that collinear vector are those vector in which the angle between two vector is 0 degree and angle between two vector is 180 degree. 180 degree means this is A vector and this is B vector. It means we can say that this is A vector and this is B vector. So we can say that the angle between A and B vector is 180 degree. So we can say that this is the collinear vector. So हम कह सकते हैं collinear vector वो वेक्टर होता है जिसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है। कोई भी दो वेक्टर के बीच में, अगर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री मीन्स ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, जो ए और बी वेक्टर दे रखे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, ए वेक्टर इस में जो और वेक्टर होते हैं वो क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। उस टाइम पर हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये हमारा कोलिनियर वेक्टर था। आगे हम क्या पढ़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। हियर कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स वी कैन से दैट वी हैव एनी प्लेन, so we can say that all vector just like A vector, B vector, C vector all lie in same plane. It means this is the plane. Here this is A vector, this is B vector, this is C vector, this is D vector. It means we can say that all vector all lie in the same plane. So हम कह सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें जितने भी वेक्टर दे रखे, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, एंड इन्फिनिटी वेक्टर, कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। जो जितने भी वेक्टर हो गए वो सभी वेक्टर क्या करेंगे, एक प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। उसे हम क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स कॉमन, प्लेनर मीन्स प्लेन। इट मीन्स कॉमन प्लेन, जो वो वेक्टर जहाँ पे जो प्लेन है, जो स्पेस है वो क्या होता है, कॉमन होता है, उसे क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इसके नाम से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन। Here this is A vector, B vector, C vector, D vector. Here we have 4 vector, all vector are lie in the same plane. The vector can be in a different direction and can be in the same direction, doesn't matter only they lie in the same plane. This is the coplanar vector. In the same way the collinear, इसके नाम से हम बता सकते हैं कोलिनियर, कॉमन, लीनियर मीन्स एक लाइन में होना। जैसे या तो क्या हो सकता है 0 डिग्री, एक लाइन में ऐसे हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में, या क्या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें कॉमन लाइन होती है, और कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो में कॉमन प्लेन होता है, उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। Now we will discuss the co-initial vector. Co-initial, co means here common, co means common, initial means starting,
it means we can say that co-initial vector are those vector which have same initial point. Same initial means same starting point is known as the co-initial vector. This is a P point. Here from this point we have three vector. This is A vector, this is B vector, and this is C vector, and this is D vector. So we can say that this is the AP vector, this is the PB, DP and CP. It means this is the PA vector, this is the PB vector, this is the DP vector and this is the CP vector. इसका मतलब क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, जो इनका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट सब में क्या होता है, कॉमन होता है. ये क्या है, जो P पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है. इट मीन्स हम क्या, कोई इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है. जैसे हमारे पास क्या है, ये हम कोई भी लाइन लेके चलते हैं. इस लाइन में क्या हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है. इस पॉइंट में क्या होता है, हम दो वेक्टर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया. ये हमने क्या कर दिया, रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर दिया. जैसे ये आर वेक्टर हो गया. तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर में काउंट हो गया. जो ये पॉइंट है वो कोई इनिशियल पॉइंट हो गया. और जो भी वेक्टर होंगे ये क्या हो जाएंगे, कोई इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे. आपको समझ आ गया. जैसे हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं. ये कौन सा एक्स है, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस. अगर हम क्या करें, यहाँ से पॉइंट निकाल लें, यहाँ से एक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. ये वेक्टर मान लिया ए वेक्टर है, ये वेक्टर ले लिया हमने बी, ये वेक्टर ले लिया हमने सी. तो हम क्या कह सकते हैं, जो कोई इनिशियल पॉइंट है उसमें वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर, जो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. लेकिन जो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा. उसको हम क्या कह सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं. अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, जीरो वेक्टर. व्हाट इज द जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड. इट मीन्स वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो. सो वी कैन से दैट वी नो दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. हियर we have any vector a vector, then the magnitude of a vector is zero vector. Zero vector means x square plus y square plus z square. The whole value is zero. It means we can say that zero vector are those vector in which value of x is zero, value of y is zero and value of z is zero. If value of x is zero, value of y of zero and value of z is zero, then this vector is known as जीरो वेक्टर. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. वो क्या जीरो वेक्टर. जैसे हमारे पास क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था. एक्स स्क्वायर की जीरो वैल्यू, जीरो का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जीरो, ये भी जीरो का स्क्वायर, ये भी जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, ये जीरो का स्क्वायर जीरो, ये भी जीरो का स्क्वायर जीरो. तो यहाँ से होल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई और जेड का जीरो होने का मतलब क्या है, जो ए वेक्टर हो गया वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है. जो ए वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. But we know that in this case x is 0, so 0 I, y is 0, so 0 j and z is 0, so 0 k. So we can say that the value of the vector is 0 I plus 0 j plus 0 k. We know that 0 is 0. So हम कह सकते हैं अगर किसी भी वेक्टर की वैल्यू 0 है तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा. इसका मतलब क्या, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. अगर इन तीनों की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से हम पुट करेंगे जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो वी नो डैट रूट ऑफ जीरो इज जीरो. सो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इज जीरो. बट इन दिस केस
if x, y and z, if x, y and z 0, then a vector is equal to xi plus yj plus zk. So we can say that a vector is equal to 0i plus 0j plus 0k. It means we can say that this is the 0 vector, because x axis, y axis and z axis all values are 0. So the vector are known as 0 vector. Thank you.